السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ اور لبنان کے تعلق سے، وہاں کیا ہو رہا ہے، جنگ بندی کے تعلق سے کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے ساتھ ہی بدھ کو لبنان پر حملے تھم چکے ہیں اور لوگ وہاں اپنے تباہ شدہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جبکہ غزہ والوں کے لیے کل کی رات بھیانک اور خوفناک تھی۔ کل سے اسرائیلی حملوں میں وہاں شدت نظر آ رہی ہے۔ تل ابیب کی فوجوں نے خان یونس کے قریب ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے جس میں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ حملے میں بچوں اور خواتین سمیت ابتدائی رپورٹوں میں 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ادھر القرارہ میں کیے گئے ایک حملے میں 2 فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ مختلف بمباری کے واقعات میں درجنوں افراد قتل کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ قلقیلیہ اور عزون سے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اور کل رات سے جس طریقے سے غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے، اس کو لے کر الجزیرہ کے سینئر سیاسی تجزیہ کار مروان بشارہ کا کہنا ہے کہ نتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی ایک وجہ غزہ کی پٹی پر جنگ جاری رکھنے کے لیے اسرائیلی فوجوں کو آزاد کرنا تھا۔ وہ خبریں کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اب مصر اور قطر غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں تیز کر چکے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصر اللہ کی عوامی سطح پر نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان حسن نصر اللہ کی موت کے ٹھیک 2 ماہ بعد کیا گیا ہے۔ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی فوج کی بمباری میں 27 ستمبر کو موت واقع ہو گئی تھی۔ ان کی عوامی سطح پر نماز جنازہ مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے التوا میں تھی۔ وہیں حزب اللہ اور اسرائیل اس جنگ بندی کو اپنی جیت سے بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاہدے کو صہیونیوں کی شکست قرار دیا ہے۔ وہیں 55 دنوں کی اگر جنگ کی بات کریں تو 79 فوجیوں سمیت 124 اسرائیلی وہاں مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اور جن علاقوں پر قبضے کی نیت سے اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان میں گھسے تھے، وہاں وہ ایک دیہات پر بھی قبضہ کرنے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر تھک ہار کر اسرائیل کو جنگ بندی کی طرف آنا پڑا ہے۔ اب یہ جنگ بندی کیا باقی رہ پائے گی یا پھر اسرائیل ماضی کی طرح اس کے خلاف ورزی کر کے جنگ بندی معاہدے کو سبوتاز کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور دہشت گرد اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگ لینڈ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں اپیل دائر کی جائے گی۔ اسرائیل نے ICC سے اپیل کی ہے کہ وہ نتن یاہو اور گیرنٹ کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جاری وارنٹ کو معطل کرے۔ اسرائیل نے دی ہیگ میں ICC کے اختیار اور گرفتاری کے وارنٹ کی قانونی حیثیت سے انکار کیا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل نے نسل کشی اور قتل عام کے جرم سے انکار نہیں کیا ہے۔ یقیناً وہ اس کا انکار کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ خود اس کی فوج نے اپنی دہشت گردی کے اتنے ثبوت سوشل میڈیا پر خود ہی وائرل کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جینوسائیڈ کا انکار تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اب وہ ICC کے اختیارات کو ہی چیلنج کر رہا ہے۔ اور غزہ میں جاری قتل عام کے دوران اس کے سب سے بڑے ساتھی امریکہ نے نہتے فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ کرنے کی تیاری کرتے ہوئے اسرائیل کو $680 ملین کے ہتھیار فروخت کرنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا ہے۔ مذکورہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب اسرائیل اور لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے درمیان امریکی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت کا مذکورہ پیکج جو ہے وہ اگست میں اسرائیل کو لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی سامان کی $20 بلین کی فروخت کے بعد کیا گیا ہے۔ جناب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ حالیہ دنوں میں قدیم مساجد و مزارات کے سروے کا معاملہ مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ گیان واپی کے بعد کچھ روز قبل ہی سنبل کی جامع مسجد کے سروے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ سروے کے دوران بھڑکے تشدد میں کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں۔ وہیں اب راجستھان میں واقع مشہور مزار اجمیر شریف کے خلاف دائر عرضی کو نچلی عدالت نے سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں شیو مندر ہے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت کے لیے 20 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس ایکٹ کے تحت درگاہ چلتی ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے اور ہندوؤں کو پوجا کا حق وہاں دیا جائے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو اس جگہ کا سائنسی سروے کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور اس معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اویسی نے اسے
हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने की एक साजिश करार दिया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने सबके लिए पीएम मोदी की खामोशी को जिम्मेदार ठहराया है। भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे इक़दामात अवाम को मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने की एक साजिश का हिस्सा दिखाई देते हैं, ताहम उसका तवील मुद्दती अंजाम मुल्क के लिए तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि ये अमन अमान को मुतासिर करते हुए तरक्की की राह में रुकावट बनेगा। मजीद इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। उत्तर प्रदेश ने बुध को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया है कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ की जो बानी है, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारत की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को ख़तरे में डालने के इल्ज़ामात को भी शामिल किया गया है। दरअसल ये मुकदमा उन पर सिर्फ इस वजह से दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू इंतहा पसंद यति नरसिम्हानंद की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उसकी वीडियो को शेयर किया था, जिसके बाद कई शहरों में मुसलमानों ने एहतिजाज भी किया। वहीं जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अब 2 नई दफ़ात जो है वो यूपी पुलिस ने शामिल की हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 152 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 66 शामिल है। दफ़ा 152 भारत की सालमियत को ख़तरे में डालने से मुताल्लिक़ है, जबकि दफ़ा 66 कंप्यूटर से मुताल्लिक़ जराइम का इहाता करती है। वहीं जुबैर ने अदालत में अपनी दरख्वास्त में कहा है कि उनका मकसद नरसिम्हानंद के इश्तिआल अंगेज़ बयानात और उनके ख़वातीन और सीनियर सियासतदानों के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरों की तरफ तवज्जो दिलाना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एफआईआर उनकी आवाज़ दबाने और नरसिम्हानंद के मुजरिमाना अमल को बेनकाब करने से रोकने की एक बदनीयती पर मबनी कोशिश है। जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उसमें नई दफ़ात की इजाफे से ज़ाहिर होता है कि हुकूमत आज़ादी इजहार को महदूद करने और हक़ाइक़ को सामने लाने वालों को दबाने के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जुबैर ने बारहा अपनी सहाफ़ती दियानतदारी के ज़रिए नफ़रत अंगेज़ी और गलत मालूमात को बेनकाब किया है, जो किसी भी जमहूरी माशरे में इंतहाई ज़रूरी काम है। हुकूमत का यह रवैया दोहरे मेयार को वाज़ेह करता है। एक तरफ इश्तिआल अंगेज़ बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुस्त या गैर मौजूद रहती है, जबकि दूसरी तरफ उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को फ़ौरी तौर पर निशाना बनाया जाता है। यह रवैया माशरती इंसाफ और कानूनी मसावात के उसूलों के भी खिलाफ है। झारखंड में हेमंत सोरेन वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ लेने वाले हैं। इस तकरीब में इंडिया इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर इत्तेहादी क़ुव्वत का मुज़ाहरा भी करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने वाले सरकर्दा लीडरान में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और टीएमसी सदर ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, उसके साथ भी कई अहम नाम जो है वो शामिल हैं। झारखंड में इंतखाब इंडिया इत्तेहाद के बैनर तले लड़ा गया था, जिसमें जेएमएम के अलावा कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल थी। वज़ीर आला हेमंत सोरेन के हल्फ बर्दारी तकरीब में इस बात का भी इम्कान है कि हरीफ पार्टी कांग्रेस और आरजेडी से एक लीडर भी वज़ारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे। महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला कौन होगा, इस सवाल के दरमियान एकनाथ शिंदे ने बुध को थाने में अपने ज़ाती बंगले पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से हथियार डालते हुए ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह रियासत के नए वज़ीर आला के ताल्लुक़ से जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। इस फैसले ने बीजेपी का हौसला तो बढ़ाया ही है, वहीं शिंदे हामियों को मायूस ज़रूर किया है। और अब देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने का रास्ता भी जो है वो साफ हो गया। आज जो वज़ीर दाखिला अमित शाह महायुति के नौमुंतखब तमाम अरकान असम्बली के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें शिवसेना शिंदे ग्रुप के एकनाथ शिंदे, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी से अजित पवार भी मीटिंग में जो है वो शामिल रहेंगे। एकनाथ शिंदे की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह के लिए ये मीटिंग उतनी मुश्किल नहीं रही, क्योंकि शिंदे ने बीजेपी के वज़ीर आला को कबूल करने की बात जो है वो तस्लीम कर दी है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 3 दिनों से हंगामा जारी है। अब ख्याल किया जा रहा है कि ये बिल अगले साल बजट इजलास में पेश किया जा सकता है। इस दौरान मरकज़ी अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट को बताया कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड की 58,000 से ज़्यादा जायदादें इस वक्त तजावुज़ात की ज़द में हैं। 869 वक्फ जायदादें सिर्फ कर्नाटका में हैं।
किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ों और तजावुज़ात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक हासिल है। इसी दरमियान वक्फ बिल की जांच करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने बुध को मुत्तफ़क़ा तौर पर अपनी मुद्दत को अगले बजट इजलास के आखिरी दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है। इजलास में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर जगदम्बिका पाल के उस मौक़िफ़ पर बरहमी का इजहार किया कि उसकी रिपोर्ट का मसवदा मंजूरी के लिए तैयार है। इजलास हंगामाराई के साथ शुरू हुआ जब अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को तनकीद का निशाना बनाया। जगदम्बिका पाल और बीजेपी कमेटी के अरकान ने उनसे रब्ता किया, जिसके बाद फिर जो है वो माहौल पुरसुकून हो गया। काबिल ज़िक्र है कि अपोजिशन जमातों ने मौजूदा वक्फ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम पर सख्त तनकीद की है और इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई के आसार नजर आ रहे हैं। कल भी गौतम अडानी के खिलाफ अमरीकी अदालत की फर्द जुर्म संभल में फसाद, जहां 5 मुस्लिम नौजवानों की पुलिस की फायरिंग में मौत वाक़ हो गई थी, और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ईवीएम पर उठने वाले सवालात, इन तीनों मामलात को पार्लियामेंट में उठाने के लिए अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ मेंबरान ने नोटिस दिए थे और बहस का मुतालबा किया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने बहस से फरार हासिल करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करवा दी। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान लगातार पार्लियामेंट में अडानी मामला, संभल तशद्दुद और ईवीएम के मामलात पर बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन न सरकार टस से मस हो रही है, न लोकसभा की स्पीकर के कानों पर जू रेंग रही है, और न ही राज्यसभा के चेयरमैन ने इन संगीन मामलात पर हुकूमत की सरजनिश करने की कोशिश की है। हुकूमत के इस रवैये पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अडानी पर लगे इतने संगीन इल्ज़ामात के दरमियान हुकूमत और जांच एजेंसियों को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने दिल्ली में अमन अमान की सूरत हाल, उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में तशद्दुद और अडानी की मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज भी किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान पेश आए तशद्दुद में पुलिस की फायरिंग में 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत वाक़ हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ हालात अब भी कशीदा है। मकामी मुसलमानों में खौफ और राज का आलम है। बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। बदकिस्मती से इस वाक़े में पुलिस ने नहायत जब्र का मुजाहरा करते हुए मुअम्मर ख़वातीन तक को भी गिरफ्तार किया है। फ़िलहाल इलाके में अमन अमान तो कायम है, मगर हालात जो है वो अब भी कशीदा बने हुए हैं। और जमात इस्लामी हिंद के वफ़द ने संभल के मुतासिरा इलाके का दौरा किया। वफ़द ने मुतासिरीन से इजहार यकजहती और खैर सुगाली मुलाकात भी की। शहर के दीनी व मिली ज़िम्मेदारान से मिलकर शहर के हालात और 24 नवंबर को क्या कुछ हुआ था उससे मुताल्लिक़ जो है वो तफसीलात भी हासिल की। वफ़द ने महलूकीन के उरसा से मिलकर सब्र व तहम्मुल से काम लेने की भी तलक़ीन की और उनको हर किस्म की कानूनी मदद व रहनुमाई की यकीन दहानी भी कराई। वफ़द शहर के बासर और जहदकारों से और वकला से भी मिला जो उन मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं या कानूनी कार्रवाई के लिए सरगर्म है। वफ़द ने तलक़ीन की है कि किसी भी तरह का इख्तिलाफ हमें कमज़ोर करेगा और मुखालफिन को फ़ायदा पहुँचाएगा। ट्रम्प ने गुज़िश्ता रोज़ धमकी दी थी कि वो इक़्तिदार संभालते ही मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली तमाम दरामदात पर कस्टम ड्यूटी आयद करेंगे। इस बयान के रद्द-ए-अमल में चीन ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि किसी भी तिजारती जंग में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, और कहा कि वो समझता है कि अमेरिका के साथ उसका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रीक़ैन के लिए फ़ितरी तौर पर फ़ायदेमंद है। वहीं कनाडा ने भी ट्रंप को याद दहानी कराई है कि उसका अमेरिका के लिए तवानाई की तरसील में कितना बुनियादी किरदार रहा है। रूस में गुज़िश्ता बरस 20 साल नौजवान को मस्जिद के सामने कुरान जलाने के जुर्म में 3 साल और 6 माह की कैद सुनाई गई थी, जिसकी सज़ा में अब मज़ीद 13 साल का इजाफा कर दिया गया है। तहम अब रूस ने पिछले माह नौजवान को वापस रूस बुलाकर यूक्रेन के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गद्दारी का मुकदमा चलाया है। इस्तिगासा ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने गुज़िश्ता बरस यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस को रूसी फ़ौजी का साजो सामान ले जाने वाली माल गाड़ियों की वीडियो भेजी थी। जज ने कुरान जलाने के 3.5 साल और इस सज़ा को मिलाकर कुल 14 साल कैद काटने का उसे हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।